Hello and welcome to Laksha Academy. In today's class, we are just going to start another part for our previous year questions for NVS PGT English, right? We have just practiced the questions from 1 to 10 and now we are going to start from the question number 11, right? So, what is the first question, right? The first question, the poem "The Mask of Anarchy" is written by which of the following poets, right? And the options are P.B. Shelley, Alexander Pope, Shakespeare, Andrew Marvell. And the answer will be P.B. Shelley, right? What will be the answer? The answer will be P.B. Shelley, okay? Because the poem The Mask of Anarchy is written by P.B. Shelley. That's why the answer is P.B. Shelley. Now coming to the second question, that is, A Farewell to Arms by Ernest Hemingway is chiefly a story about dash in a realistic way, right? A Farewell to Arms by Ernest Hemingway is chiefly a story about dash in a realistic way, right? It's a story about war and love, okay? It's not about conspiracy. It's not about the between the it's not about conflict between men and arms. It's not about a friendship of army men. It's about war and love, right? It's about war and love. One thing you have to just remember, they only didn't ask this type of question. अगर उन्होंने एग्जाम में क्या करना है ना, वो क्वेश्चन से ही फ्रेम कर लेते हैं, राइट? अगर वो एग्जाम में वो ये भी दे सकते हैं, मान लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, 2019 का क्वेश्चन है ये, एंड मे बी इस बार ये आ जाए कि अ फेयरवेल टू आर्म्स इज रिटन बाय होम, ऑप्शंस दे देंगे, राइट? तो ये ना क्वेश्चंस पे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस से भी एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट आप लोगों ने हर चीज़ पर ध्यान देना, राइट? क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज वाले नहीं, आप लोगों को क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखना है, एंड क्वेश्चंस को भी माइंड में रखना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? देन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि ये तो चलिए सिंपल सा था, द पोएम द मास्क ऑफ एनार्की इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, दैट इज पी.बी. शेली, राइट? नाउ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज चीफली अ स्टोरी अबाउट डैश इन अ रियलिस्टिक वे, अबाउट war and love in a realistic way, right? Now coming to the 13th number question. The question is, fill in the blanks with appropriate subordinating conjunction to complete the sentences, right? Question क्या है? You work, you may dash, यहाँ पे dash है, right? यहाँ पे होगा dash. You work, you may go home. Okay, हमें क्या डालना है यहाँ पर? Conjunction डालना है. Okay, हम लोगों को क्या डालना है? तो हम लोगों को conjunction डालना है to complete this sentence. Dash your work, you may go home. Okay, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन, पहले से स्टार्ट करते हैं. Now you have finished your work, you may go home. क्या ये हो सकता है? Let's see. As you have finished your work, you may go home. When you have finished your work, you may go home. Before you have finished your work, you may go home. इन सबों में से ना सबसे करेक्ट ये वाला बैठ रहा है, राइट? ये जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंजंक्शन, राइट? व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू मे गो होम, एंड बाकी दे आर करेक्ट, बट इन दिस केस प्रॉपर ये सही है, राइट? प्रॉपर ये सही है, दैट्स व्हाई व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम. ओके, जब आपने अपना काम खत्म कर लिया हो तो आप अपने घर जा सकते हैं, राइट? Now coming to the 14th number question, right? Which of the following was the first public playhouse built in London in 1576? Okay, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इससे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, राइट? चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, एंड नेट के एग्जाम्स हो, इससे इस प्ले हाउस से हमेशा क्वेश्चंस आने ही आने हैं, राइट? तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस बिल्ट इन लंडन इन 1576? ओके, ऑप्शन है द रोज, द कर्टन, द फर्स्ट ग्लोब, द थिएटर, राइट? द आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर? The answer will be the theater, right?
रोज क्यों नहीं होगा, कर्टन क्यों नहीं होगा, फर्स्ट ग्लोब क्यों नहीं होगा? नाउ मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। देखो, रोज क्या, अबाउट द प्ले हाउस। Rose was an Elizabethan theatre, right? It was the first purpose-built playhouse to ever stage a production of any of Shakespeare's play, right? The theatre was built on Messuage called the Little Rose. Okay? तो रोज के बारे में क्या है कि ये एक एलिजाबेथन थिएटर था एंड फर्स्ट पर्पस प्ले हाउस, शेक्सपियर्स के प्ले इसमें प्रोडक्शन हुआ था उनका, एवर स्टेज हुआ था, शेक्सपियर्स के प्ले को स्टेज किया गया था रोज में, राइट? तो इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एलिजाबेथन थिएटर, या विच वाज द फर्स्ट पर्पस built playhouse to ever stage a production of any of Shakespeare's play, right? So the answer will be the Rose Theatre, right? What will be the answer? The answer will be Rose Theatre. इसमें क्या है? The theatre was built on a messuage called the Little Rose. Okay? क्वेश्चन में आ सकता है ना कि which was built on messuage called Little Rose. Okay? Then the answer will be the Rose Theatre, right? I don't think so कि Rose Theatre के बारे में आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, राइट? रोज के बारे में क्या बताया गया है कि इट वाज एन एलिजाबेथन थिएटर, इट वाज द फर्स्ट पर्पस बुilt playhouse to ever stage a production of any of Shakespeare's play. The theatre was built on a messuage called the Little Rose, right? Now coming to the next part, that is the Curtain Theatre, right? It was also an Elizabethan playhouse located in Hewitt Street, Shoreditch, within the modern London borough of Hackney, just outside the city of London. It opened in 1577 and continued staging plays until 1624, right? तो कर्टन थिएटर भी क्या था, ये भी एक एलिजाबेथन प्ले हाउस था, एंड ये कब बना था, ये कब खुला था? इट वॉज ओपनड इन 1577, राइट? इट वॉज ओपनड इन 1577, राइट? इट वॉज ओपनड इन 1577 एंड कंटिन्यूड स्टेजिंग प्लेज अंटिल 1624 तक इसमें स्टेज प्ले किए गए थे, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिएटर, दैट इज द थिएटर, राइट? द थिएटर वॉज एन एलिजाबेथन प्ले हाउस in Shoreditch, in Curtain Road, part of the modern London borough of Hackney, just outside the city of London. The theatre is considered the first theatre built in London for the sole purpose of theatrical productions. The theatre's history include a number of important acting troupes, including the Lord Chamberlain Men, which employed Shakespeare as actor and playwright, right? अब क्या कि देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना, डायरेक्टली ये यहीं से लिया गया, राइट? कि ऐसा कौन सा थिएटर विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट बिल्ट इन लंडन for the sole purpose of theatrical production, right? The theatre's history include a number of important acting troupes, including the Lord Chamberlain's Man, which employed Shakespeare as एक्टर एंड अ प्ले राइट, राइट? तो ये जो प्ले था ना, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, उसमें शेक्सपियर एक्टर भी बने थे एंड ही वाज बोथ एक्टर एंड प्ले राइट, राइट? ये ना आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? ये लाइंस आप लोग नोट आउट कर लीजिए, या फिर ये पूरी आप लोग नोट आउट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द ग्लोब थिएटर, राइट? द ग्लोब थिएटर was a theatre in London associated with William Shakespeare. Basically जितने भी theatres हैं ना, the Globe हुए, Rose हुए and the Curtain, they are just associated with William Shakespeare, right? It was built in 1599 by Shakespeare's playing company, the Lord Chamberlain's Men, on land owned by Thomas Brand and inherited by his son Nicholas Brand and grandson Sir Matthew Brand. It was destroyed by fire on 29 June 1613. A second Globe Theatre was built on the same site by June 1614 and closed by an ordinance issue on 6 September 1642, right? तो ग्लोब थिएटर कौन कौन से थिएटर शेक्सपियर से रिलेटेड है? then the answer will be रोज है, कर्टन है एंड ग्लोब है, राइट? एक तो यहाँ पर रोज है एलिजाबेथन एज में, रोज है, कर्टन है एंड
थिएटर है, सारे बेसिकली सारे जो थिएटर्स है ना वो बेसिकली शेक्सपियर से ही बिलोंग करते हैं, राइट। क्योंकि उनके टाइम में वो एक्चुअली प्ले राइट थे, तो उनके प्लेज इन्हीं थिएटर्स में प्ले किए जाते थे, राइट। सो यहाँ पे क्या, द ग्लोब थिएटर वॉज अ थिएटर, ओके। द ग्लोब थिएटर बोलिए, फिर फर्स्ट ग्लोब थिएटर बोलिए, राइट, क्योंकि इसे क्या किया गया था, इसे जला दिया गया था, राइट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये जल चुका था किसके द्वारा, तो फायर के द्वारा। ये कब जला था, तो 29 जून 1630। और सेकेंड ग्लोब थिएटर जस्ट उसके एक साल के बाद हुआ था, ठीक है, 13 में बाय फायर से डिस्ट्रॉय हुआ था। और नया 14 में सेकेंड ग्लोब बना था, राइट, सेकेंड ग्लोब थिएटर बना था, ओके। सेकेंड एक साल के बाद ही सेकेंड थिएटर वहां पे फिर से बन गया था उसी साइट पर, राइट। तो नाउ कमिंग टू द आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो एक्चुअली आप लोगों को ये थिएटर्स समझ में आ गए होंगे कि रोज थिएटर क्या है, कर्टन क्या है, फर्स्ट ग्लोब क्या है. I have written and I have given each and everything in this slide, right? So if you just want to note it down, then you can note it down in your copy, right? So the Rose was an Elizabethan theatre. It was the first purpose-built playhouse to ever stage a production of any of Shakespeare's play, right? The theatre was built on a messuage called the Little Rose. ना कर्टन थिएटर के बारे में क्या बताया गया है कि इट वाज आल्सो एन एलिजाबेथन प्ले हाउस लोकेटेड इन ह्यूवेट स्ट्रीट. ओके, ये प्लेस उतने जरूरी नहीं है, बट ये आप लोग याद रखिए कि ये एलिजाबेथन प्ले हाउस ये था. एंड ये 1577 में ओपन किया गया था. एंड इसमें कब तक स्टेजिंग हुआ था प्लेस का, तो 1624 तक इसमें प्लेस स्टेज किए गए थे, राइट. नाउ कमिंग टू द थिएटर, दैट इज द थिएटर was an Elizabethan playhouse. It was also an Elizabethan playhouse. ये आप लोगों को रिमेम्बर रखना है. एंड इस पे ये रखना है कि it was ये जो क्वेश्चन पूछा गया है that is the same thing. The theatre is considered the first theatre built in London for the sole purpose of theatrical production, right? The theatre's history includes a number of important acting troupes, including the Lord Chamberlain's Men, which employed Shakespeare as एक्टर एंड प्ले राइट, राइट. तो ये चीज याद रखना है अगर क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड चैम्बरलिन मैन ये कौन से थिएटर में प्ले किया गया था, तो आंसर होगा द थिएटर. ओके, एंड इन विच प्ले शेक्सपियर वाज एम्प्लॉयड एज एन एक्टर एंड प्ले राइट बोथ, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, राइट. तो अब हम आते हैं, ये तो मैंने बता दिया ग्लोब थिएटर के बारे में कि ये 13 में इसे फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. एंड सेम एक साल के बाद दोबारा उसी जगह पर सेकेंड ग्लोब थिएटर को बिल्ड किया गया था, राइट. सो अब आते हैं 15th नंबर वाले क्वेश्चन पे, राइट. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज अ कोट फ्रॉम अ पोएम by which of the following poets, right? तो ये जो है ना, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये बेसिकली किनका कहा गया है, ये जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है. और कौन सी पोयम में कहा है ये जो है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. ये शेक्सपियर के विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से पोएम में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है माई हार्ट लीप्स. ओके, ये कब लिखा गया है, तो ये लिखा गया है 1802 में. एंड इसे और क्या कहते हैं, या फिर और बोलिए द रेनबो. ओके, तो ये जो पोयम है माई हार्ट लीप्स अप, उसमें ये कोट्स कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, दैट इज द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन. ओके, एंड ये जो पोयम है माई हार्ट लीप्स, ये 1802 में लिखी गई थी. एंड इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है द रेनबो, राइट. तो this is the concept is very clear here. okay, the child is the father of man कौन से पोयम में बोला गया है, तो ये बोला गया है
My Heart Leaps Up, which is written by William Wordsworth, and it is also called My Heart Leaps Up is also called The Rainbow, and it was written in 1802, right? तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज 16 नंबर, राइट? यूरिया हीप, one of the major antagonists in the novel David Copperfield, was created by. सिंपल सा क्वेश्चन है, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? तो ऑब्वियस सा बात है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है. ये इन्होंने नहीं लिखा है, डोरिस लेसिंग ने नहीं लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने नहीं लिखा है. तो आंसर विल बी चार्ल्स डिकेन. एंड यू नो व्हाट, ये जो यूरिया हीप थे, ही वाज द विलन. ओके, विलन थे ये, ही वाज अ विलन, राइट? और उनकी जो नॉवेल थी डेविड कॉपरफील्ड, ये उसके एक एंटागोनिस्ट थे, यानी कि विलन थे. एंड डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, राइट? उन्हें रुडयार्ड किपलिंग में नहीं लिखा था, डोरिस लेसिंग ने नहीं लिखा था, एंड जॉर्ज ऑरवेल ने भी नहीं लिखा था, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 17th नंबर. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour with music sweet as love, which overflows her bower, right? These lines describes, अगर आपने पोयम पढ़ी है टू अ स्काईलार्क, like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour with music sweet as love, which overflows her bower, right? These lines describes. तो अगर आप लोगों ने पोयम पढ़ी है टू अ स्काईलार्क, then you can easily go to the ऑप्शन नंबर टू अ स्काईलार्क, राइट? इसमें क्या है ना कि वो जो स्काईलार्क जो होती है वो हायर एंड हायर उड़ती ही जाती है, राइट? वो गाना गाती है फॉर हर लव, राइट? तो उसकी जो म्यूजिक है वो इतनी स्वीट है दैट ओवरफ्लोज हर बोर, राइट? वो एकदम दिल से गाना गाती है, राइट? दिस लाइन्स, बस ये इतना ही है. तो मैं पूरी पोएम पे अभी नहीं आ रही हूँ. मैं जब अपने डिटेल्ड कोर्स लूँगी, दैट इज़ इन लक्ष्य एकेडमी ऐप, तो मैं उस कोर्स में इस पूरे पोएम को आप लोगों के सामने मैं डिस्क्राइब करूँगी, राइट? तो ये जो पोएम है, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन इन अ पैलेस टावर, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower, right? तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है टू अ स्काईलार्क से, राइट? नाउ कमिंग टू द 18th नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज इट वाज थॉमस है, राइट? यहाँ पे एम छूट गया है. It was Thomas Wyatt and Henry Howard who introduced dash to England in the first half of 16th century, right? तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस वेयट एंड हेनरी होवर्ड ने, उन्होंने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था, राइट? उन्होंने एलिजीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, एपिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बैलेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट दे इंट्रोड्यूस सोनेट्स, राइट? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सोनेट. ओके, सोनेट क्या होता है? किन्हीं को पता है सोनेट क्या होता है? सोनेट इज अ 14-line पोएम, राइट? 14-line पोएम को क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं. नाउ कमिंग टू एलेजीज, एपिक्स एंड बैलेट्स. व्हाट आर एलेजी? एलेजी क्या है? तो एलेजी इज अ मेडिटेटिव लिरिक पोएम lamenting the death of a public personage or a friend or loved one. By extension, या फिर एनी रिफ्लेक्टिव लिरिक ऑन द बॉर्डर थीम ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, राइट? तो एलिजीज क्या है? वो ना लेमेंटिंग है ना, जब दुख वाली पोएम जो होती हैं, जब किसी के डेथ पर वो पोएम लिखी जाती है, लाइक वो कोई भी पर्सन हो या फिर फ्रेंड हो या फिर लव्ड वंस हो, वो उनके लिए लिखी जाती है. एंड सिंपली एलिजीज क्या है? तो एलिजीज आर लेमेंटिंग पोएम्स, राइट? लेमेंटिंग पोएम्स कर दीजिए यहाँ पर. ओके, एलिजीज आर लेमेंटिंग पोएम्स, राइट? तो ये किसी के डेथ पर लिखी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, पर्सन हो या फिर फ्रेंड हो या फिर लव्ड वंस हो, राइट? नाउ कमिंग टू एपिक्स. एपिक्स क्या होते हैं, राइट? तो एपिक्स आर लार्ज बॉडी ऑफ वर्क दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर टास्क कॉल्ड स्टोरीज, राइट? जैसे
रामायणा, रामायणा इज एन एपिक, राइट? रामायणा एपिक है एंड उसमें बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं, राइट? ईच एंड एवरी पार्ट इज जस्ट कट इनटू स्मॉलर टास्क, या फिर उन्हें इसीलिए बहुत लॉन्ग नरेटिव पोएम्स होते हैं ना, वो एपिक्स कहलाते हैं, राइट? एंड इट कैन ब्रोक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर टास्क कॉल्ड स्टोरीज, ओके? आई थिंक एलिजीज क्या होते हैं? एलिजीज होते हैं लेमेंटिंग पोएम। एपिक्स क्या होते हैं? लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। एंड बैलेट्स क्या होते हैं? बैलेट्स होते हैं अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, और इन पॉपुलर म्यूजिक अ स्लो लव सॉन्ग, राइट? अ स्लो लव सॉन्ग को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेट कहते हैं, राइट? बैलेट क्या होता है? स्लो लव सॉन्ग। एपिक्स क्या होता है? वो लेमेंटिंग सॉन्ग, लेमेंटिंग पोएम होती है। एंड एलिजीज क्या होती है? लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। बैलेट्स क्या होते हैं? तो स्लो लव सॉन्ग होते हैं। एंड सोनेट्स क्या होते हैं? तो सोनेट्स मैंने बताया ना कि अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 syllable एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, राइट? सोनेट के जो फिक्स पैटर्न्स ऑफ राइम होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, ओके? Now coming to the 19th question, that is, Charles Dickens narrated incidents about treatment of children in 19th century, offense, women's and exploitation with an autobiographical touch in which of the following novels, right? तो आंसर क्या होगा इनका? आंसर होगा डेविड कॉपरफील्ड, बिकॉज चार्ल्स डिकेंस जो है ना, उनकी नॉवेल्स आर द बेस्ट नॉवेल्स। अगर मुझसे कोई पूछे कि नॉवेलिस्ट में आप किसको चुनना चाहते हैं, देन माय आंसर विल बी चार्ल्स डिकेंस। उनके नॉवेल्स जस्ट दे आर आउटस्टैंडिंग, राइट? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, आप लोगों को ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ एंड कैसे एक्सप्लोटेशन होता है, कैसे एजुकेशन होता है, उनके नॉवेल्स में आपको इन सारी चीज़ों का मिक्सचर मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? Charles Dickens narrated incidents about treatments of children in the 19th century, offense, women's and exploitation with an autobiographical touch in which of the following novels, right? Then the answer will be David Copperfield. Hard Times भी बहुत अच्छी है, बिकॉज हार्ड टाइम्स में क्या बताया गया है ना कि एक लोग होते हैं, इसमें तीन बुक में बांटा गया है, शोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। एंड मैं बताऊंगी इसे डिटेल्स में, राइट? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्या है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में क्या है कि इसमें पिप की स्टोरी है, वो कैसे एजुकेशन वो पढ़ता है, वो पढ़ाई करता है एंड वो बहुत अच्छा इंसान और बड़ा इंसान बन जाता है एंड लास्ट में उसे स्टेला मिल जाती है, राइट? ओलिवर ट्विस्ट क्या है कि ओलिवर एक बच्चा होता है छोटा सा, उसे पिक पॉकेटर्स के पास भेज दिया जाता है, वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं एंड बहुत बड़ी स्टोरी है। एंड ये सारी स्टोरीज अगर आप लोग पढ़ेंगे देन यू विल जस्ट गेट टू नो अबाउट द वर्क्स एंड चार्ल्स डिकेंस के क्या थॉट्स थे, राइट? इन नॉवेल्स से आप लोगों को बहुत कुछ उनके बारे में पता चलेगा कि व्हाट वाज द ही वाज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? Then the answer of this question is David Copperfield. Now coming to the 20th question. Alone, 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 all alone. Alone on a wide, wide sea. And never a saint took pity on my soul in agony. These famous lines are by Coleridge, are from his poem जहाँ पे सी का जिक्र है, राइट? जहां भी सी का जिक्र है एंड क्या लिखा है? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी एंड नेवर अ सेंट टुक पिटी ऑन माय सोल इन एगनी, राइट? दीज फेमस लाइन्स आर बाय कॉलरिज, राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर, राइट? उन्होंने लिखा है ये लाइन्स, ये पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम बाय एस.टी. कॉलरिज, राइट? बिकॉज उन्होंने ये पोएम को लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड किया है एंड ये पोएम एक उन लोगों की कहानी है जो समुद्र में फंस जाते हैं एंड कैसे एक एल्बेट्रस आता है एंड ये लोग सोचते हैं और ये लोग तूफान में घिर जाते हैं एंड बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ एक इंसान बचता है, राइट? सिर्फ एक इंसान उसमें बचता है और ये लोग
क्या सोचते हैं ना कि वो जो एल्बेट्रस इनके पास आता है उसके कारण बैड लक होता है, एंड वो लोग सी में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, उस एल्बेट्रस को बैड लक समझ के उसे मार देते हैं एंड अपने शिप पर उसे वो टांग देते हैं, सो दैट जितना भी बैड लक है, मौसम खराब हुआ है, वो उससे वापस से ठीक हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग मर जाते हैं, उसमें सिर्फ एक इंसान बचता है एंड वो ही वो पूरी कहानी बताता है, एंड वो बताता है कि कैसे उसे लगता है कि जो लोग मरे हैं वो उसे हॉन्ट करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग पोएम बाय एस.टी. कॉलरिज, राइट। सो आई थिंक कि आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य अकेडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, देन जस्ट ऐप को जल्दी से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए एंड गेट इनरोल्ड टू आवर कोर्सेज, दैट इज फॉर पीजीटी इंग्लिश for NVS, right? So that's all for today. Meet you in the next class.